آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں، کراچی میں پانی کا شدید بحران، کئی علاقوں میں سپلائی معطل ہو گئی، دھاویجی پمپنگ اسٹیشن کے 9 پمپ 27 اپریل تک بند، شہر کو یومیہ 250 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا۔ نارتھ کراچی سرجانی اسکیم 33 گلستان جوہر کے علاقے متاثر، گلشن اقبال صدر اور چنیسر ٹاؤن کے کچھ علاقوں میں بھی پانی بند، نیپا سپورہ اور سخی حسن ہائیڈرنٹس بھی بند ہیں۔ حکام کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ پانی بچائیں ورنہ مشکل میں اضافہ ہو جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے لانڈھی اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ لانڈھی کورنگی کے عوام کو ماضی میں سازش کے تحت بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا، انہیں بہتری کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ مزید تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی پرعزم، لانڈھی اسپورٹس کمپلیکس کا 30 سال بعد تزئین و آرائش کے بعد افتتاح۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کمپلیکس کے سوئمنگ پول کو جدید خطوط پر بہتر بنایا گیا ہے، اب یہاں کم فیس پر ممبرشپ فراہم کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری استفادہ کر سکیں۔ یہاں کی عوام کے لیے یہ پبلک پول کی فیسلٹی KMC کی جانب سے ہے تاکہ یہ جو غریب طبقہ ہے جو کہ جم خانہ کی کلبز کی ممبرشپ نہیں لے سکتا، جس کے پاس وہ لاکھوں روپے نہیں ہے کہ وہ ممبرشپ لے سکے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، چیف جسٹس کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلائیں۔ جو قانون ہے اس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ استحقاق ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ کو بلاتے ہیں اور اس کو ریکویزیشن کرنے کا بھی طریقہ کار ہے۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے قانون کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نیچرلی پاکستان کے سب سے بڑے عدالتی عہدے پر فائز ہیں، وہ اپنی انسٹیٹیوشن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کب کیا میٹنگ کال کرنی ہے، تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہب کینال سے متعلق منفی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سے پانی کے حصے میں اضافے کی درخواست کر دی گئی ہے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ اسکیم 33 غازی کوٹ میں سادی ٹاؤن نہر میں ڈوبنے والے 12 سالہ زاہد کی تلاش دوسرے روز بھی جاری، ریسکیو 1122 کے غوطہ خور 84 انچ پانی کی لائن سمیت مختلف مقامات پر سرچنگ کر رہے ہیں، لیکن تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں۔ اسکیم 33 غازی کوٹ میں سادی ٹاؤن نہر میں ڈوبنے والے 12 سالہ زاہد کی تلاش دوسرے روز بھی جاری ہے، ریسکیو 1122 کے غوطہ خور 84 انچ پانی کی لائن سمیت مختلف مقامات پر سرچنگ کر رہے ہیں، لیکن تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کراچی میں چوری شدہ موبائل فونز کی ریکوری کے بعد انہیں اصل مالکان کے حوالے کرنے کی ایک اور کامیاب کاوش سامنے آئی، جہاں قائد آباد میں منعقدہ تقریب میں درجنوں شہریوں کو ان کے موبائل واپس کر دیے گئے۔ چوری کے بعد قیمتی موبائلوں کی واپسی، کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن اور CPLC ملیر کا مشترکہ کاوش۔ چوری شدہ موبائل کو اصل مالکان تک پہنچانے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں 70 سے زائد موبائل فونز ان مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ صدر کمیڈا قائد آباد ضیاء محمود کا کہنا تھا کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی موبائل فروخت کے لیے آتا ہے اسے پہلے CPLC سے چیک کروائیں، اگر وہ چوری شدہ نکلے تو ہم اسے روک لیتے ہیں اور پھر CPLC کے ذریعے اصل مالک تک پہنچاتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے یہ سرمنی آرگنائز کی ہے CPLC کے تعاون سے، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ CPLC موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی موبائل فون ہم نے ریکور کیے ہیں وہ CPLC کے تعاون سے کیے گئے ہیں، اور الحمدللہ آج 70 سے زائد موبائل فون ہم نے یہاں ریکور کیے اور ان کے جو مالکان ہیں ان کو بلایا ہوا ہے۔ جی بالکل، CPLC کے تعاون سے یہ کام ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارے پاس یہاں CPLC سیل بنا ہوتا ہے جس میں ہمارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی موبائل یہاں خرید و فروخت کے لیے آتا ہے تو اس کو پہلے ہم CPLC سے ویریفائی کرتے ہیں۔ چیف CPLC ملیر بابر یونس نے شہریوں سے اپیل کی کہ اگر ان کے موبائل فونز چوری ہو جائیں تو فوری 1102 پر رپورٹ کریں، ہم ان کی شکایت پر کام کریں گے اور موبائل ریکور کر کے اصل مالک تک پہنچائیں گے۔ سب لوگوں سے گزارش ہے جب موبائل ہو جائے تو اس کا IMEI رجسٹر کرائیں، 1102 میں رجسٹر کرائیں تاکہ ہم آپ کو ایک صحیح سروس پرووائڈ کر سکیں۔ لوگ یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ جناب بس چوری ہو گیا، گیا کہاں ملے گا، نہیں ملتا ہے، یہ اس چیز کی پروف ہے کہ جی ملتا ہے۔ یہ اچھا اقدام ہے، یہ جس کی جو سفر کریں ہیں، جن کے موبائل چھینے گئے ہیں یا چوری گئے ہیں، وہ اس تقریب کے ذریعے واپس آ رہے ہیں، اس سے اچھا میسج جائے گا۔ میسج ہے کہ بھائی آپ گورنمنٹ تو کام کر رہی ہے اپنا، لیکن آپ ان کو سپورٹ یہ کریں کہ جہاں بھی یہ واقعہ ہو فوری طور پہ آپ رپورٹ کر دیں
CPLC हुकाम ने उम्मीद जाहिर की कि शहरियों के ताउन से ही कार्रवाइयों को मजीद मौसर बनाया जा सकता है। CPLC ने साल 2000 छीने गए मोबाइल फोन असल मालिकान तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया है। डिप्टी चीफ ऑपरेशंस शब्बर मलिक के मुताबिक SOPs मुरतब किए गए हैं, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। गवर्नर हाउस में मुनाकिदा तकरीब में छीने गए मोबाइल फोन शहरियों के हवाले किए गए हैं, जिसमें नाबीना शहरी भी शामिल थे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। CPLC और मोबाइल फ़ोन मार्केट एसोसिएशन शहरियों की खुशियों का जरिया बन गई। गवर्नर हाउस में वाक़ CPLC ऑफिस में छीने गए मोबाइल फ़ोन उनके असल मालिकान के हवाले किए जाने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सरीना मोबाइल मार्केट और ड्राइवन मोबाइल मार्केट गुलिस्तान जौहर के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ वाक़यात में छीने गए मोबाइल फ़ोन असल मालिकान के हवाले किए गए और ये इस वक्त मुमकिन हुआ जब शहरियों ने CPLC में शिकायत दर्ज कराई और तमाम ज़रूरी तफसीलात फराहम की। कॉल आई 3 दिन पहले CPLC से, तो उन्होंने बोला आपका नाम था है, तो बोला जी, जो बोला आपने कोई CPLC में रिपोर्ट लिखवाई थी? बोला जी बिल्कुल मैंने लिखवाई थी। तो बोल रहे हैं आपका मोबाइल रिकवर हुआ है, आपका कौन सा मोबाइल था? तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, तो फिर मैंने बताया जाहिर सी बात है मेरी चीज़ है, तो मैंने बोला ये मोबाइल था मेरा, ये स्नैच हुआ था, ये यहाँ से। खुश नसीब अफराद में एक नाबीना शहरी भी शामिल थे जिनका मोबाइल फ़ोन बस में चोरी हो गया था। मोबाइल वापस मिलने पर उन्होंने CPLC का शुक्रिया अदा किया। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, तो अब हमारे जो इदारे हैं उन्होंने ढूंढा है, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे। बहुत खुशी हो रही है मुझे। डिप्टी चीफ CPLC ऑपरेशंस शब्बर मलिक ने कहा कि पुलिस और मोबाइल मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर SOPs मुरतब किए हैं। गुज़िश्ता साल 1000 मोबाइल फ़ोन असल मालिकान को वापस किए गए थे, जबकि इस साल ये हदफ बढ़कर 2000 मोबाइल फ़ोन मुकर्रर किया गया है। टाइमली कंप्लेन कराएं। लेट कंप्लेन भी एट टाइम्स इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती कि मुमकिन है अगर आप 3 दिन बाद कंप्लेन कराते हैं तो 3 दिन के दौरान वो मोबाइल मार्केट में बिक ना गया हो। सरीना मोबाइल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हाजी मुजम्मिल ने बताया कि मोबाइल ख़रीदो फरोख्त के दौरान तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात और फ़ोन की तफसीलात चेक की जाती हैं और CPLC से भी तस्दीक की जाती हैं। आप 1102 पे कॉल करें और अपने मोबाइल की कंप्लेन कर दें, ताकि वो किसी भी मोबाइल मार्केट में बिकने जाए, हमारी मार्केट में आए या कहीं पर भी जाए, तो बंदा चेक करने से पहले उसको जैसे ही चेक करेगा तो मोबाइल फ़ोन कंप्लेन में होगा, वो यूनियन में आके जमा हो जाएगा, जो असल मालिक है उसके हैंड ओवर हो जाएगा। CPLC मोबाइल मार्केट एसोसिएशन और पुलिस का मुश्तरका ताउन शहरियों के लिए न सिर्फ सहूलत बल्कि उनके कीमती मोबाइल फ़ोन की वापसी का जरिया भी बन रहा है। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में ट्रैफिक हादसात खतरनाक हद तक बढ़ने लगे हैं। रवामा मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद जहाँ बाग और 31 जख्मी हो चुके हैं। एदादो शुमार के मुताबिक रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 347 अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि 447 अफराद जख्मी हुए हैं। जनवरी में 83 अफराद जहाँ बाग और 110 जख्मी हुए। फरवरी में 98 अफराद जान से गए और 63 जख्मी हुए, जबकि मार्च में 96 अफराद जहाँ बाग और 239 जख्मी। रेस्क्यूदारों ने शहरियों से एहतियात और ट्रैफिक कवानीन पर अमल की अपील की है। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। इंसाद दहशतगर्दी अदालत में 4 मुकदमात की समाअत। मुल्जिम अरमगान ने केस मुंतकिल न होने पर एतराज़ उठा दिया। अदालत का मुल्जिम अरमगान पर शदीद बरहमी का इजहार। DSP कत्ल केस में नई दफात शामिल, समाअत मुलतवी। जाली दस्तावेजात केस में मुल्जिमा आलिया बतूल की जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज जुनूबी का 10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमा आलमी नेटवर्क में मुलविस रही। लियारी में गैर कानूनी 7 मंजिला इमारत पर अदालत का नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA समेत दीगर हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने इमारत मिसमार करने की सजा दायर कर दी। जेर हिरासत मुल्जिम के अकाउंट से रकम निकालने का मामला। अदालत ने 4 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक लाखों रुपए की रकम बरामद कर ली गई। बच्चों को जाली दस्तावेजात से बैरून मुल्क स्मगलिंग का केस। इश्तिहारी मुल्जिम मदिया इस्लाम को अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमा बच्चों की खरीदो फरोख्त में मुलविस रही। मशरिक़ वस्ती में कशीदा सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके असरात पाकिस्तान तक भी पहुँच गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत फी लीटर कीमत में 26 रुपये से ज़ायद इजाफा किया गया है। आपको बताएं, मशरिक़ वस्ती में कशीदा सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके असरात पाकिस्तान तक भी पहुँच गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत फी लीटर कीमत में 26 रुपये से ज़ायद इजाफा किया गया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। पेट्रोल की आग ने एक बार फिर आवाम की जेबें जला दी। आलमी कीमतों का तूफान पाकिस्तान में महंगाई का सुनामी ले आया।
मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है, जिसके असरात पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक पर भी पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजमूई तौर पर 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इत्तलाक मुल्क भर में फौरी तौर पर कर दिया गया है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कहा कि आमदन पहले ही महदूद है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा घरेलू बजट पर बोझ डाल रहा है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करके 200 से 250 रुपये फ़ी लीटर की सतह पर लाया जाए। 1000 रुपये दिहाड़ी है, उसमें से 500 रुपये का पेट्रोल निकल जाता है, बाकी बचता क्या है? हमारे लिए तो मजबूरी है, अब क्या करें। क्या होना चाहिए पेट्रोल की कीमत वही पुरानी 250 रुपये होनी चाहिए, कम से कम 200 के करीब, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा गरीब है, मजदूर है, पैसे वाले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जो गरीब तबका है उसके लिए ज़्यादा परेशानी होगी। जो मुसाफिर जो बसों में सफ़र करते हैं, बाइकों में सफ़र करते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी का बास बनेगा ये। माहिरीन के मुताबिक अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा जारी रहा तो मुल्क में महंगाई का दबाव मज़ीद बढ़ सकता है और इसके असरात बराह रास्त आम सारिफ तक पहुँचेंगे। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर दोनों नाला इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सब्सिडी ना दें, डीजल की कीमत में हकीकी कमी की जाए। बढ़ती लागत ने कारोबार चलाना मुश्किल बना दिया। मुसाफिर बोले महंगाई के बायस अब सफ़र से ही गुरेज कर रहे हैं। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। महंगाई का पहिया घूमने से ट्रांसपोर्ट का पहिया सुस्त। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। फैसले को ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हमारी रोजमर्रा की गाड़ियों में कमी हो रही है। मुसाफिर सफर करने से गुरेज कर रहे हैं। कराची से लाड़काना, सखर, कंदकोट, कश्मोर, खैरपुर, उमरकोट, इस्लाम कोट व दीगर शहरों में जाने वाली मुसाफिर कोचेस के किरायों में इजाफा नहीं किया गया। अभी भी 27 रुपये 77 पैसे जो है वो इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और इसकी परसेंटेज हमारे कारोबार में, हमारे किरायाजात में तकरीबन 15% की बनती है। तो हम 15% अपनी गाड़ियों के किरायाजात में इजाफे का ऐलान करते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर मुराद खान दुर्रानी का कहना है कि उम्मीद थी डीजल की कीमत में कमी होगी, लेकिन फिर इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफा नहीं कर रहे, अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल रहे। हुकूमत ने जब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, रोजगार खत्म हो गया। बुकिंग ऑफिस में सन्नाटे हैं। तो हर वक्त हम अवाम पे बोझ भी नहीं डाल सकते हैं। अभी फिर इन्होंने रात को ऐलान किए और डीजल जो है 26 रुपये लीटर पे बढ़ा दिए। हमें बिल्कुल यकीन कर उम्मीद थी कि कम होगा, मगर इन्होंने बढ़ा दिए और ये पहले तरह इसी तरीके से ये करेंगे कि जैसे 26 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए 10-12 रुपये कम कर देंगे हमें खुश करने के लिए। मुसाफिर हुकूमत पर फट पड़े कि महंगाई की सूरत हाल में क्या करें। हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करे। नहीं, रोड पे अड्डे खाली पड़े हुए हैं, किधर जामे हम लोग। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दिया। हर आए दिन डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, किराए वही हो रहे हैं, पुराने किराए पुराने चल रहे हैं, किराया नहीं बढ़ा रहे हैं। डीजल इतना महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई, आधी से ज्यादा खड़ी हो गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए तेल की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करके ऐसी पॉलिसी मुरतब करे जिससे महंगाई का बढ़ता हुआ तूफान रुक सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रिमशा इस्माइल के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स को भी मैदान में ला खड़ा किया है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया। सदर मलिक शहजाद अवान के मुताबिक बढ़ती लागत और हुकूमती पॉलिसियों के बायस ट्रांसपोर्ट सेक्टर शदीद बहरान का शिकार है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ट्रांसपोर्टर्स किरायों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया गया। यह फैसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स के शदीद रद्द अमल के तौर पर सामने आया।
सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स अलाइन मलिक शहजाद अमान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है। इनके मुताबिक हुकूमती पॉलिसियों के बायस ट्रांसपोर्ट का शोबा शदीद दबाव का शिकार है। ट्रांसपोर्टर्स मुल्क के मफाद में नुकसान बर्दाश्त करते हुए गाड़ियाँ चला रहे हैं, जबकि मौजूदा हालात ने ट्रांसपोर्टर्स के कारोबार को बुरी तरह मुतासर किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स जो हैं और पाकिस्तानी अवाम वफाकी हुकूमत के इस फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम 10% किराया बढ़ाने का भी ऐलान करते हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं ताकि इन्हें रिलीफ फराहम किया जा सके। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तानी अवाम और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, लाखों ट्रांसपोर्टर इससे बेरोजगार हो रहे हैं। हम बार बार वफाकी हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जंगी हालात की वजह से अगर आपकी मजबूरी है तो ट्रांसपोर्टर्स को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिलीफ दिया जाए। टूल टैक्स में, विद होल्डिंग टैक्स में, मोटर पुलिस के जो चलान हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के चलान हैं और देगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और सूबाई हुकूमतों की तरफ से जो ट्रांसपोर्टर्स पर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर जितने भी टैक्सेस आए हैं, उन तमाम टैक्सेस में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दें। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में इजाफे के बाद अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। काबिश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते सरमायाकारों की नजरें अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिन मुज़ाकरात पर मज़कूर रहीं, जिसके बायस मार्केट पूरे हफ्ते दबाव का शिकार रही और 100 इंडेक्स में 3267 पॉइंट्स की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। आलमी कशीदगी का असर जाहिर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दबाव, 100 इंडेक्स में बड़ी कमी हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ता मनफी रुझान के साथ मुकम्मल हुआ। मार्केट में मुसलसल दबाव के बायस सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार करते रहे। 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 3267 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई और इंडेक्स 1.88% कमी के बाद 1,70,672 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,75,298 जबकि कम तरीन सतह 1,66,381 रही। कारोबारी हफ्ते के दौरान 228 अरब रुपए मालियत के तकरीबन 6 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन में 372 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मजमूई मार्केट मालियत 18,877 अरब रुपए रह गई। साबिक डायरेक्टर BSX अमीन यूसुफ का कहना है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तातुल ने सरमायाकारों को मोहतात रखा। क्योंकि मेन मसला हमारा क्या है, ऑयल का। ऑयल की प्राइसेस हमें इफ़ेक्ट करती हैं, दुनिया भर में प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं ऑयल और गैस का, तो वो एक इशू है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो इकोनॉमी में हमारे कोई इश्यूज़ नहीं है, हमारी इकोनॉमी प्रॉपर चल रही है, IMF से आपको लोन भी मिल रहा है, सब चीज़ें बेहतर चल रही है। सिर्फ यही एक कंसर्न है, जहाँ ये वॉर का अगर सीज़ फायर और एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाएगा तो आप देखेंगे मार्केट अपने वापस ऊपर के नंबर्स दिखाए। माहिर स्टॉक मार्केट शहरियार बट ने बताया कि पूरे हफ्ते मार्केट दबाव में रही और बेशतर सेक्टर्स में सरमायाकारों ने मोहतात रवैया इख्तियार किया। देखिए, एक और बदतरीन हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमने विटनेस किया। वजह आपके सामने है, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसके बाद दुनिया भर की बाजारों में एक हलचल मच जाती है। ख़ासतौर पे WTI दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमने एशियन मार्केट्स में भी देखा, डाउ जोन्स इंडेक्स में भी देखा और यूरोपियन मार्केट भी पूरी तरह से मुतासिर हुई। वहीं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी हमने देखा कि अराउंड 6,000 से ज़ायद पॉइंट की इस हफ्ते हमने कमी मार्केट के अंदर देखी है। हफ्ते के दौरान बैंकिंग, फर्टिलाइज़र और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में मुसलसल फ़रोग़ के दबाव ने मार्केट की समत मुतासिर की। दूसरी जानिब इनफरादी सरमायाकारों ने $14.6 मिलियन की ख़रीदारी की, जबकि गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से $12.5 मिलियन की फ़रोख्त रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में भी $11.9 मिलियन के शेयर्स फ़रोख्त किए गए। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोना $23 इजाफे से फ़ी औंस $4,708 तक पहुंच गया। मुकामी सराफा मार्केट में भी सोने की कीमत बढ़ गई। 1 तोला सोना 2,300 रुपये महंगा होकर 4,93,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,971 रुपये इजाफे के बाद 4,22,806 रुपये में फरोख्त हो रहा है। 1 तोला चांदी 52 रुपये महंगी होकर 8,049 रुपये तक जा पहुंची।